A very warm welcome to all the students, teachers, and esteemed colleagues from Tata Steel Foundation. I'm Ms. Monmi Barra from Delhi. I welcome you all. And today we are gathered here for this virtual expert speak session on water and climate change for students and teachers as part of the Green School project, Phase 4. Um, Terry and Tata Steel Foundation envisioned this Green School project with a focus in 2017 on augmenting the capacities of students from classes 6 to 8 through curriculum linkages, action projects, capacity building activities by learning the basics of on four broad topics, that is energy, water, forest and biodiversity and waste, जो कि आप लोग सबको पता है, इसके बारे में आप लोग जान चुके हैं, बहुत बार हम लोग का सेशंस हो चुका है. And the project so far has been successful in promoting the environmental consciousness amongst the students. However, we feel हम लोग को we feel कि ये एक link होना चाहिए, interlink होना चाहिए climate change or SDGs के साथ. And so this year, for particularly for this phase, we have introduced linking it with the major themes, that is climate change and SDGs, that is Sustainable Development Goals. In this context, a series of expert sessions for teachers and students in the form of webinars have been planned to further train on the themes interlinking with climate change and with SDGs in order to cultivate the values and knowledge to live more sustainable lives. And आप लोग बहुत बार सेशंस आप लोग ने अटेंड कर चुके हैं, एंड इनफैक्ट ये हम लोग का 11th series होगा. And so we are gathered here for the virtual expert speak session on water and climate change for students and teachers as part of the project Green School. And this interactive workshop, we aim to orient students about the water resources management in the light of climate change. And we are very fortunate to have with us today our expert, Professor Arun Kansal. He's a Dean Academics and Professor in Coca-Cola Department of Regional Water Studies, that is at Terry School of Advanced Studies, that is Terry SAS. Thank you so much for joining in, sir. We are very grateful that you're here today. And so moving on to the sessions, I'll quickly, go on to the sessions. And in order to, set the context and आप लोग को brief overview दे about the issue of water and हम लोग आज किस लिए है, क्या कर रहे हैं. So to give you a brief introduction, I would like to invite in fact, we have with us today Ms. Neha, who is a fellow and area convener at the Environment Education and Awareness area at TERI. And Ms. Neha is also the project in charge of this Green School project. So without any further delay, I would like to invite Ms. Neha, and over to you, ma'am. थैंक यू मॉनवी. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब बच्चे? आपको पता है आपको सबको चैट विंडो अपनी ऑन रखनी है ना? हम सब आपस में बातें करते हैं, इसलिए अभी वीडियो ऑन है. आप सबको अगर कोई क्वेरी हो तो हम हैंड रेज ऐसे भी कर सकते हैं या डिजिटल हैंड रेज कर सकते हैं. क्विकली हम याद करते हैं कि हमने वाटर के बारे में कितना और कैसे कब पढ़ा है. हम 2017 में ग्रीन स्कूल प्रोजेक्ट इनिशिएट किया था. हमने इन लोकेशंस में करा था, झारखंड एंड उड़ीसा के सारे टाटा स्टील ऑपरेशनल एरियाज में करा था, राइट? और आई कैन हियर माई सेल्फ. एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? हेलो, या ओके. तो जब 2017 में हमने ये प्रोजेक्ट शुरू करा था ना, तब हमने सिर्फ 10 स्कूलों के साथ किया था, और तब उन 10 स्कूल्स ने स्कूल एक्शन प्रोजेक्ट किए थे. और उस एक्शन प्रोजेक्ट्स में आप छोटे छोटे बच्चों ने मिलकर बहुत सारी एक्टिविटीज करी थी. उसको देखकर हमें लगा कि इस प्रोजेक्ट को हमें बढ़ाना चाहिए, और तब हमने प्रोजेक्ट को बढ़ाया 30 स्कूल्स में. तब उसके अंदर जुड़े बहुत सारे स्कूल्स जो कि ICSE बोर्ड के हैं, CBSE बोर्ड के हैं, झारखंड बोर्ड के हैं, उड़ीसा बोर्ड के हैं. तो आप एक आते हैं डिफरेंट वेरिड बैकग्राउंड से, सबके अपनी लर्निंग्स हैं, सब अलग अलग आइडियाज सीखते हैं टीचर से, और हम यहाँ पर उसे फिर इम्प्लीमेंट करते थे.
आपको पता है जब आप 30 स्कूल्स एक साथ आए थे, तब हमने आपको चैलेंज दिया था 2018 में कि आपके यहाँ पर एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो आप सब बच्चों ने एक्सप्रेस किया था, वो था वाटर यानी पानी और ऊर्जा यानी एनर्जी, कि हम इस पर प्रोजेक्ट्स करेंगे। और तब सुकिंदा के बच्चों ने एक वेटलैंड को रेजुविनेट किया था। वहाँ पर बहुत स्लिपरी एरिया था और आप बच्चों ने खुद सोचा कैसे ठीक करना है, कैसे करना है। आपने खुद अपनी बजटिंग करके मुझे अपने बजट्स प्रोजेक्ट्स दिए थे, उसे हमने सैंक्शन किया था और फिर आपने रेजुविनेट किया था। झरिया के बच्चों ने कहा हम तो मॉप शो करेंगे, हम डांस करेंगे, हम वाटर के ऊपर सॉन्ग्स करेंगे और कम्युनिटीज को बताएंगे कि पानी को कंजर्व क्यों करना है। और जोड़ा नामुंडी के बच्चों ने कहा हम तो अपनी सोना रिवर को साफ करेंगे, बहुत गंदी है। इन लोगों को समझ में नहीं आता, आप सबने साफ करा। फिर आसपास के गांवों में जाकर सबको बताया कि हमें अपनी रिवर को साफ करना क्यों ज़रूरी है, कैसे साफ रखना चाहिए। और आप सारे छोटे छोटे बच्चों की बातें सबने सुनी और मानी। उसको देखकर फिर वेस्ट बोकारो के बच्चों ने बोकारो रिवर क्लीन करी और उन्होंने वहाँ आसपास की इंडस्ट्रीज को भी बताया कि प्लीज पॉल्यूट मत करो, ये हमारी रिवर है। आपने बहुत अच्छे कैंपेन्स करे। और फिर हमारे जो रेजिडेंशियल ब्रिज कोर्स यानी जो आप फर्स्ट लर्नर्स हैं, आप तो पहले ही इतना प्राउड फील कराते हैं अपने मम्मी पापा को कि आप अपने घर में पहले बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। फिर आपने सोचा, आपने नए नए नुक्कड़ नाटक बनाए, आपने बहुत सारे एनिमल्स की ड्रेसेस पहनी थी ना, और गांवों में जाकर ट्राइबल एरियाज में जाकर आपने लोगों को बताया कि पानी क्यों बहुमूल्य है, उसे क्यों बचाना चाहिए, हमें क्या क्या करना चाहिए। तो इसका मतलब है आप सब बच्चों को ये तो पता है पानी की इम्पोर्टेंस क्या है, हमें उसे कैसे बचाना चाहिए, क्या उसका हमें सदुपयोग कैसे करना चाहिए। पर आप हम जैसे इस साल हम बहुत सारे एक्सपर्ट सीनियर प्रोफेसर्स टीचर्स को बुला रहे हैं ना, तो हम उनसे क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पानी हम बचाते हैं, ये पानी है, बिजली है, ऊर्जा, हमारे वन, हमारा जो हम अपशिष्ट प्रोड्यूस करते हैं यानी वेस्ट जो हम प्रोड्यूस करते हैं, इसका लिंक क्या है जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज से, या सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से लिंक क्या है। ये सिर्फ ये करना जरूरी है तभी हम सिर्फ क्योंकि हम अच्छे बच्चे हैं इसलिए करना जरूरी है, या इससे हमें कुछ अच्छा मिल सकता है। इसलिए आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर अरुण कंसल। अरुण सर वाटर के एक्सपर्ट हैं, इसलिए हमने कहा कि आप आएंगे और यहाँ पर सारे छोटे बच्चे हैं वो समझेंगे कि ये पानी जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज या सतत विकास, वो सतत विकास के बारे में आज नहीं जानेंगे, कल जानेंगे। ठीक है सर, आपसे 4 दिन मिलेंगे, आज, कल, सोमवार और मंगलवार को। तो ये नहीं है आज सुना और कल गायब हो गए, हमें चारों दिन आना है तभी समझ में आएगा। ओके, और आप सर से पूछ सकते हैं, सर को हिंदी आती है, हम हिंदी में भी सवाल पूछ सकते हैं। ओके, ऐसा कोई नहीं, कोई सवाल छोटा नहीं होता या स्टूपिड नहीं होता। ये मत सोचना सर क्या सोचेंगे, सर तो बहुत बड़े हैं, नहीं, हम अपने सवाल पूछेंगे। और हमें पता है कुछ लिंक्स पर पूरे 50 बच्चे बैठे हैं, वो स्कूल का लिंक है, तो प्लीज आप अपने टीचर को बोलेंगे हमारा सवाल है, प्लीज हैंड रेस कीजिए, हम पूछेंगे और सबको चांस मिलेगा। इसलिए प्लीज पूछिए, और जो आपने काम किया है उसको आप आगे कैसे कर सकते हैं। आप में से कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था मैम वाटर ऑडिट कैसे करेंगे, एनर्जी तो कर लिया, हमने एनर्जी के बारे में सीख लिया, हमने अपने बल्ब्स को भी चेंज कर लिया, अब हम लाइट्स भी ऑफ करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो वाटर ऑडिट के बारे में भी सर बताएंगे। तो आपकी जितनी भी क्वेरीज हो सकती है ना वो भी पूछ सकते हैं। और क्योंकि सर वाटर एक्सपर्ट हैं, जो बच्चे यहाँ पर 9th 11th और 12th के हैं, वो अगर उनकी क्वेरीज पानी को लेकर करियर के लिए हैं कि हम इसको आगे ले सकते हैं, तो अगर आप वो चाहें तो पूछ सकते हैं, पर आज के पूछने दूंगी, उसके लिए मंगलवार को पूछेंगे, तो चारों सेशन अटेंड करेंगे फिर। ओके, तो आज हम जलवायु परिवर्तन के बारे में और पानी के बारे में सर से बात करेंगे। अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर ने कुछ समझाया हमें नहीं समझ में आ रहा, प्लीज हैंड रेज करिएगा। ओके, और अगर सब बच्चे ऐसा करेंगे तो मौनमी दीदी हो सकता है आपको आज मूवी सुनाए और हो सकता है कल मैं आपको स्टोरी भी सुना दूँ। इट ऑल डिपेंड आप सब कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
तो आपकी मर्जी है, मूवी देखनी है, कहानियां सुननी है तो ध्यान से सुनिएगा और फिर सर से बातें करना. ओके, इज दैट फाइन? थम्स अप मिलेगा सबको? आएगा? जो बच्चों ने कैमरा ऑन सब कर सकते हैं, मैंने सबको कैमरा राइट्स दिए हैं. वेरी गुड. चलिए, with this I hand over to Monmi. Thank you, Neha. And yeah, moving on to the technical session. Thank you so much, Neha, for such a for setting the context. And I'm sure बच्चे बहुत excited है सर से questions भी पूछने का. And सर का even I look forward to सर का जो session होगा. So before that, let me introduce you and introduce you to the speaker today. And please in the meanwhile I would request everyone कि आप लोग अपना जो chat box है आप लोग ज़रूर use कीजिएगा, so that आप लोग का अगर कुछ questions है आप लोग वहाँ पर अपने expert यहाँ है already, so आप लोग कुछ भी अगर questions raise करना चाहते हैं you please feel free to do so. And so, yeah, moving on to the technical session, like I have mentioned, we have with us Professor Arun Kansal. He's the Dean, Academic and Professor at Coca-Cola Department of Regional Water Studies at the Terry School of Advanced Studies, Terry SAS. And he would be talking about water and climate change, and mainly about water resources management in the light of climate change. Professor, and I'm sorry if I put my mask on, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का restrictions already आ गए हैं. Yeah, so pardon me for that. Okay, let me give you a brief introduction about Professor Kansal. Professor Kansal has 27 years of interdisciplinary research, consulting, and teaching experience in the areas of environmental engineering, water resources management, treatment methods, urban environment and energy environment, climate changes, climate linkages, and trade-offs. Currently serving as professor and dean at Terry School of Advanced Studies. He is experienced as principal investigator, co-principal investigator, and team member for several internationally funded research and consultancy projects. And he is also the lead author of IPCC WG3ARF, served as ICCR chair professor to Freie University, Germany, on environmental governance. And we are very fortunate to have you, sir. And without any further delay, I would like you to invite you and take the floor, sir. Thank you so much. We cannot see you, sir, or we cannot hear you. Yeah, sorry. Actually, वो mic को unmute होने में time लग गया. Though I started speaking. लेकिन चलो सबसे पहले मॉन्मी आपका, नेहा का, दोनों का धन्यवाद कि और टेरी और टाटा स्टील्स का भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि मुझे ये मौका दिया है कि मैं हमारी जो यंग जनरेशन है, बच्चे हैं, उनके साथ मुझे अपनी बात साझा करने का मौका दिया. ये बहुत हमारे लिए ज़रूरी विषय है. हम लोगों की अपनी जीवन के लिए, हमारे आने वाली जनरेशंस के लिए हमारे को बहुत सारी चीज़ें सीखनी है. और हम लोग जब यूनिवर्सिटी में होते हैं तो हम जनरली बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं जो 12th के बाद ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं. तो मुझे बहुत कम मौका मिलता है कि मैं स्कूल के बच्चों से, स्कूल के टीचर से इंटरेक्ट कर पाऊँ. तो इसके लिए मैं टेरी और टाटा स्टील दोनों का धन्यवाद दूंगा और आप सभी का, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, कि आप लोग आए और आप लोग मुझे एक मौका दे रहे हैं कि अपनी बात आपके साथ शेयर करने का. तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद. मेरी हिंदी Sir, sorry to disturb you, sir. We cannot see you. If your video is open, sir, यहाँ पर. Yeah, actually, हाँ, okay. हाँ, तो मैं आई होप मैंने अभी तक जितना बोला वो तो सुनाई दिया होगा. Yes, sir. हाँ, ठीक है. तो हालांकि जैसे कि मैं जब हम पढ़ाते हैं तो
बहुत बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं जो कि ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, तो उनके साथ जब हम डिस्कशन करते हैं तो वो बहुत अलग लेवल का होता है। और आज मेरे को मौका मिला है कि आप लोगों के साथ एक बहुत ही बेसिक लेवल पे इस चीज़ को डिस्कस करने का कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बने, ताकि आप उस अंडरस्टैंडिंग को के बेसिस पे अपना आगे का करियर, अपने आगे का जीवन शैली और जिस तरीके से हमें काम करना चाहिए अपने एनवायरनमेंट के साथ, किस तरीके से हमें उसके साथ रहना चाहिए, उस चीज़ के बारे में आप थोड़ा-सा इसको समझ पाएँ। मैंने ये भी देखा कि इसमें टीचर्स भी जॉइंड हैं, तो हो सकता है कि इस माध्यम के थ्रू जो टीचर्स लोगों को भी जो थोड़ा बहुत हमसे पता चलेगा, वो आगे आने वाले बच्चों को भी वो उस तरीके से अपना पढ़ा सकते हैं। तो सच में एक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और नेहा ने जैसे बताया कि किस तरीके से बच्चे इंस्पायर होने के बाद किस तरीके से उन्होंने काम किया है। अपने चाहे नाटक के थ्रू लोगों को बताना, चाहे वो अपने वेटलैंड्स को, रिवर्स को साफ करने के लिए, तो सच में ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ। तो थैंक यू एवरीवन। अब मैं अपनी बात हालाँकि तो मैं वैसे ही बात करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि जब तक चीज़ें थोड़ा-सा सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगी, तो वो चीज़ बहुत बोरिंग लगेगी। इसलिए मैं एक अपनी अभी पीपीटी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। मेरे को 1 मिनट का टाइम दीजिए। मुझे लगता है कि आप सब लोगों को अब ये दिख रही होगी पीपीटी। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, मेरी ना एक बहुत गंदी आदत है, जब मैं बोलना शुरू करता हूँ तो अक्सर मैं टाइम का ध्यान नहीं रख पाता हूँ। तो जब भी लगे कि टाइम मैं एक्सीड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को 4 दिन का मौका दिया है, मतलब 4 घंटे का, लेकिन मैं बहुत बातें हैं इसमें करने की, शायद 4 दिन बहुत कम पड़ेंगे, तो मैं बोलता चला जाता हूँ। तो मौनमी, आप मुझे अलर्ट Sure, कर sure. दीजिएगा एंड आई विल नॉट बी एबल टू सी एनी स्क्रीन और हैंड्स रेज़, तो आप एनीवन कैन इंटरप्ट इन बिटवीन एंड बिल्कुल टॉक टू सर, मी। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। चलो आज हम अपने इस 4 दिन की यात्रा को शुरुआत करते हैं कि बेसिक चीज़ों से। और सबसे पहले बेसिक चीज़ है कि पानी और पर्यावरण परिवर्तन जिसको हम क्लाइमेट चेंज बोलते हैं, उन पानी और पर्यावरण परिवर्तन में क्या रिलेशनशिप है? किस तरीके से दोनों एक-दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं? तो इस चीज़ को पहले हम समझते हैं, फिर ये समझने की कोशिश करेंगे आज कि ये पानी को हमें मैनेज करना, उसको तरीके से हैंडल करना क्यों बहुत ज़रूरी है और ये क्यों बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो उस चीज़ का ना एक ब्रॉड दूसरे पर्सपेक्टिव से मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि पृथ्वी जो है हमारा ग्रह है, पूरे सौर मंडल में एक सबसे यूनिक प्लेनेट, मतलब खास ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो वो ये पृथ्वी खास क्यों है? पृथ्वी खास इसलिए नहीं है कि इसमें इंसान रहते हैं, ह्यूमंस लिव करते हैं, इसलिए खास नहीं है। पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम में खास इसलिए है क्योंकि एक पृथ्वी ही ऐसा प्लेनेट है जिसमें पानी है। ओके, और अब तो वैज्ञानिक खोज रहे हैं कि चांद में भी पानी मिलेगा, मार्स में भी पानी मिलेगा और कोशिश कर रहे हैं। एंड अभी बहुत ही कुछ साल पहले ये इंडियन साइंटिस्ट ने ही मिशन ने पता चला कि पानी में फ्रोजन चांद में फ्रोजन फॉर्म में थोड़ा सा पानी है। तो एक पानी जो है इसकी खोज क्यों हो रही है? क्योंकि पानी हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और बच्चों, आपने किताबों में पढ़ा होगा कि अबाउट 6 बिलियन साल पहले जो पृथ्वी में जीवन का जो शुरुआत हुई थी, वो समुद्र से ही हुई थी। तो फर्स्ट सेल विच इज कॉल्ड पेंजिया, जो पहला सेल फॉर्मेशन हुआ था, वो समुद्र के अंदर ही हुआ था, दैट इज पानी के अंदर ही हुआ था। तो पानी जो है हमारी इतना ज्यादा जरूरी है कि अगर कहीं पे जीवन है तो वहां पे पानी है, और पानी है तो वहीं पे ही जीवन की पॉसिबिलिटी है। तो पानी बहुत जरूरी चीज है, इसी वजह से हमारी पृथ्वी खास है। अब आता है कि पानी जो है वो क्लाइमेट या पर्यावरण से कैसे रिलेटेड है। अब मैं आपसे बताऊंगा कि एक्चुअली दरअसल होता क्या है, जो हमारा क्लाइमेट है, और क्लाइमेट को मैं बार बार हिंदी में नहीं बोलूंगा, अगर किसी को क्लाइमेट वर्ड
क्लाइमेट मतलब पर्यावरण, मतलब जो हमारा आसपास का वेदर है, लॉन्ग टर्म वेदर, उसको क्लाइमेट बोलते हैं। तो क्लाइमेट जो है वो पानी से बहुत इन्फ्लुएंस होता है, और पानी भी जो है उसके क्लाइमेट से इन्फ्लुएंस होता है। अब आप ये देखिए, अगर कोई समुद्र के पास रहता है, आप में से कई लोग उड़ीसा में भी हैं, समुद्र को जानते हैं, जिसको हम कोस्टल एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो जहाँ पे समुद्र होता है वहां का वातावरण अलग होता है, और वहां से अगर हम 500 किलोमीटर अंदर की तरफ आ जाएं तो उसका वातावरण बिल्कुल अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि पानी की वजह से हमारा वातावरण को इन्फ्लुएंस होता है। तो जैसे बॉम्बे है, मद्रास है, वहां पे पूरे साल भर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता है। लेकिन दिल्ली है, राजस्थान है, वहां पे देखेंगे गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी और सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी होती है। तो हम ये देखते हैं कि पानी से हमारा क्लाइमेट इन्फ्लुएंस होता है। इसी तरीके से क्लाइमेट से पानी का इन्फ्लुएंस होता है। जैसे जहां पे बारिश बहुत ज्यादा आती है, वहां पे आपको तालाब भी मिलेंगे, बड़ी बड़ी झील मिलेंगी, नदियां मिलेंगी। और राजस्थान, गुजरात जैसी जगह पे जहां पे बारिश बहुत कम आती है, वहां पे आपको रेगिस्तान मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पानी और पर्यावरण दोनों आपस में बिल्कुल एक दूसरे से मिले हुए हैं। उस मिलने का कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो हमारा पर्यावरण है उसमें जो सबसे मेजर एलिमेंट, और जब हम कहते हैं ना कि आज का आसमान कैसा है या आज का पर्यावरण कैसा है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं आज गर्मी है या आज सर्दी है, मतलब हम टेम्परेचर की बात करते हैं। और टेम्परेचर होता है हीट से रिलेटेड। तो ज्यादा अगर ऊर्जा या ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वहां पे गर्मी ज्यादा होगी, जहां पे टेम्परेचर कम होगा वहां पे गर्मी कम होगी। तो होता क्या है, जो पानी है, फिजिक्स में आप यूज करते हैं स्पेसिफिक हीट। तो पानी की स्पेसिफिक हीट जो है वो बहुत हाई है। इसका सरल भाषा में मतलब ये है कि पानी के अंदर टेंडेंसी होती है वो हीट को या एनर्जी को स्टोर करता है। और वो हम जो देखते हैं वो स्टोर कैसे करता है, मान लो जब हम पानी को उबालते हैं तो जो हीट होती है वो पानी के अंदर आती है और वो भाप बन करके ऊपर उड़ती है। तो एक किस्म से क्या हो गया कि पानी ने उस हीट को अब्सॉर्ब कर लिया। अब वो जो भाप है, जब वो कहीं पे किसी सतह को टच करती है तो वहां पे वो फिर से भाप जो है पानी में बदलने लगती है। तो वो भाप से पानी कैसे बदलता है? क्योंकि उस वक्त वो हीट रिलीज होती है। तो एक किस्म से क्या होता है कि पानी के अंदर क्षमता है हीट को अब्सॉर्ब करने की और हीट को ट्रांसफर करने की, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की। और ये जो हीट को अब्सॉर्ब करना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ही तरीका है जिस तरीके से वाटर क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। और अगर जो बड़े बच्चे हैं जो 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, उन्होंने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि हमारे जो ओशंस हैं, समुद्र जो है वो ओशन करंट आपने पढ़ा होगा। ओशन करंट के थ्रू वो हीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ एंड पोल से इक्वेटर की तरफ। दैट मींस ओशन करंट्स जो होते हैं वो हीट को, तापमान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा करके हमारे जो जो तापमान के एक्सट्रीम्स हैं, जो पृथ्वी पे एक्सट्रीम्स होते, उसको वो मॉडरेट करते हैं। अगर मान लो पृथ्वी पे पानी नहीं होता, उस वक्त क्या होता? उस वक्त हमारे जो जो धरती का तापमान होता वो -डिग्रीज में होता, और कई जगह पे तो इतनी ज्यादा सर्दी होती कि वो -50-100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता, और कहीं पे इतनी ज्यादा गर्मी होती कि तापमान वहां का 70-80 डिग्री होता। अगर पानी नहीं होता तो पूरी पृथ्वी पे तापमान के इतने एक्सट्रीम्स होते कि यहाँ पे कभी जीवन संभव नहीं हो सकता था। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पे पानी है, तो ओशन करंट्स क्या करते हैं, जो ओशन होता है उसके अंदर ना पानी, जब जैसी हीट आती है तो पानी के अंदर ऊर्जा आ जाती है। पानी के अंदर ऊर्जा आ जाती है तो उसको रिलीज करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। हमेशा गर्म पानी और ठंडे पानी को अगर आप साथ साथ रखोगे तो आपस में मिलेंगे, क्योंकि तो पानी का जो डेंसिटी होती है वो हीट से बहुत इन्फ्लुएंस होती है। गर्म पानी होगा उसकी डेंसिटी कम होगी, और ठंडा पानी होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से हमारे ओशन करंट्स बनते हैं। और वो ओशन करंट्स क्या करते हैं, हमारी पृथ्वी का जो एक्सट्रीम टेम्परेचर है
उसको वो मॉडरेट करते हैं, उसको मतलब उसको थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं कि वो इतना एक्सट्रीम में ना जाए। तो अगर हमारे यहाँ अगर कहते हैं कि पृथ्वी का जो एवरेज तापमान है, एवरेज सब जगह का अगर एवरेज ले ले, पोल से लेकर के इक्वेटर तक, तो एवरेज तापमान करीब 15 डिग्री के आसपास है। लेकिन अगर हमारे यहाँ पानी नहीं होता तो ये एवरेज टेम्परेचर 5 डिग्री के आसपास होता। तो जो एक किस्म से ये हो गया कि जो क्लाइमेट है और जो पानी है वो बहुत एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। और ये बिल्कुल साफ पता चलता है, अगर आप रेगिस्तान में जाएंगे तो वहां पे आपको पानी नहीं होगा, तो वहां की जो मट्टी होती है, वहां की जो जलवायु होती है वो बिल्कुल अलग होगी। और वही चीज अगर आप ज्यादा पानी जहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, वर्षा होती है, वहां पे जाओगे तो वहां पे आपको बिल्कुल अलग किस्म का क्लाइमेट मिलेगा। तो वाटर और क्लाइमेट, यस सर आपका स्लाइड्स चेंज मैंने अभी तक किया नहीं, अभी तक किया ही नहीं है। सॉरी सॉरी मैंने अभी किया ही नहीं, अभी तो मैं टेक्निकल इश्यूज हाँ हाँ नहीं नहीं आई अंडरस्टैंड। हाँ ओके अभी तो मैं पानी और क्लाइमेट के बारे में बता रहा हूँ। तो क्यों ये वाई मतलब मेरा जो बताने का है कि हम वाटर रिसोर्सेज और क्लाइमेट चेंज को एक साथ क्यों देख रहे हैं। हम खाली वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट क्यों नहीं बात कर रहे, क्योंकि वाटर रिसोर्सेज और क्लाइमेट बहुत ज्यादा एक दूसरे से लिंक है। और एक चीज इसमें बताइए, जो हमारी वर्षा होती है, मानसून, मानसून सीजन है हमारे यहाँ पे, मानसून क्या है, वो एक किस्म से क्लाइमेटिक पैटर्न है, एक किस्म से क्लाइमेट का मैनिफेस्टेशन है। तो जब अगर मैं बच्चों से जब मैं पूछता हूं कि अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो क्लाइमेट चेंज हमारे को कैसे पता चलता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हाउ क्लाइमेट चेंज मैनिफेस्ट इटसेल्फ। तो क्लाइमेट चेंज जो होता है वो उसका मैनिफेस्टेशन पानी के थ्रू ही होता है। क्योंकि जब भी क्लाइमेट चेंज होता है तो हमारी वर्षा ऋतु का पैटर्न चेंज हो जाता है। जब बारिश होनी होती है, बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी या बहुत कम बारिश होगी, ड्रॉट्स एंड फ्लड्स हमारे बढ़ जाते हैं। तो क्लाइमेट चेंज हमारा, अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उससे हमारे वाटर रिसोर्सेज में क्यों फर्क पड़ता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से हमारा पूरा मानसून पैटर्न चेंज हो जाता है और हमारे पानी की जो अवेलेबिलिटी होती है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। इसी तरीके से आपने साइक्लोन्स पढ़, उड़ीसा में जो लोग रहते हो तो साइक्लोन से तो बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। साइक्लोन क्या है, अगर साइक्लोन क्या है कि जो समुद्र से बनता है, उसमें बहुत तेज गति से हवा चलती है। ये एनर्जी इतनी कहां से आती है, ये एनर्जी जो हमारी सोलर एनर्जी है वो समुद्र के अंदर आई, वाटर के अंदर आई, वाटर हीट होकर के उसके अंदर उसने क्लाउड्स बनाए और वो हाई, जब भी क्लाउड्स बनते हैं तो वो हीट रिलीज होती है और वो जो हीट रिलीज होती है वो उसको शक्ति देती है कि बहुत तेज हवा चलाए। तो जो साइक्लोन्स हैं, टोर्नेडोज हैं और जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं, वो जो क्लाइमेट चेंज हमारे को जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स करता है वो पानी के माध्यम से ही करता है। हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हमारे ना जितने भी समुद्र में के पास की शहर है वो डूब जाएंगे। वो क्यों होंगे, क्योंकि हमारा क्लाइमेट चेंज से सी लेवल राइज होगा, समुद्र का पानी का स्तर बढ़ेगा। समुद्र का पानी का स्तर क्यों बढ़ता है, एक तरफ तो हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट होके पानी ऐड करेंगे पोल्स में, दूसरी तरफ जैसे मैंने बताया कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है, दैट मीन्स पानी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो जो सी लेवल राइज है क्लाइमेट चेंज की वजह से इसलिए होता है क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और उसके वजह से हमारा सी लेवल बढ़ेगा और कोस्टल सिटी खतरे में आएंगे। इसी वजह से पानी और क्लाइमेट चेंज दोनों आपस में बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है। और इसी वजह से जो अगले 4 दिन हम बात करेंगे, इसी कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे और गहराई से, ताकि हम अपनी जीवन शैली में उस तरीके के परिवर्तन ला सके। मैं स्लाइड जानबूझ के चेंज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि स्लाइड्स चेंज नहीं हो रही है। तो मैं तो बात करता ही रह जाता हूँ। तो जैसे नेहा ने सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में भी बताया, तो अगर मैं कई बार बच्चों से पूछता हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि आज हमारे पर्यावरण में जितनी भी प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं, समस्याएं आ रही है, उसका मूल कारण क्या है, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस। तो बच्चे मेरे को बहुत किस्म के जवाब देते हैं। जैसे कोई कहता है कि प्रदूषण बढ़ रहा है, कोई कहता है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, कोई कहता है कि हम बहुत ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। लेकिन अगर मूल कारण पे जाएं,
उसका मूल कारण ये है कि जो हमारा जो जनसंख्या है, ह्यूमन पॉपुलेशन जो है, और जो नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, उनके बीच में जो हमारा बैलेंस होना चाहिए वो बिगड़ जाता है। तो जब भी हमारे रिसोर्सेज और जनसंख्या के बीच में बैलेंस बिगड़ता है तो पर्यावरण समस्याएं होती है। अब सवाल आता है कि जो हम रिसोर्सेज कहते हैं, जो वो रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज बच्चों दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं एनवायरमेंटल रिसोर्स और एक होता है टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स। एनवायरमेंट रिसोर्स का मतलब हो गया कि भाई किसी जगह पे, मान लो कोई भी एक शहर ले लो या डिस्ट्रिक्ट ले लो, उस जगह पे कितना पानी है, कितनी वनस्पति है, वेजिटेशन है, कितनी उसके अंदर मिनरल्स हैं, ऑयल है। तो ये हो गया एनवायरमेंटल रिसोर्स विच इज नेचुरली इंडोर, मतलब एक हमें एक किस्म से प्रकृति ने प्रदान किए हैं उस जगह को। तो ये हो गया हमारे एनवायरमेंटल रिसोर्स। लेकिन हम उस एनवायरमेंटल रिसोर्स को कितने अच्छे से यूज कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि हमारा सोशल, कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितनी हुई है, कि हमारा कितनी हमने विकास किया है। जितना विकास होगा हमारा, उतना ही हमारे अंदर उसका समझ होगी कि हम एनवायरमेंटल रिसोर्सेज को कैसे यूज करें। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं बच्चों समझाने के लिए। जैसे आप लोगों ने अपने पेरेंट्स से पूछा होगा कि कंप्यूटर्स आपके जमाने में कैसे होते थे, और आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक बड़ा सा स्क्रीन होता है, उस स्क्रीन के साथ एक सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, कैमरा होता है, ये सब मिलकर के कंप्यूटर सिस्टम होते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे, यही कंप्यूटर सिस्टम आज के टाइम में लैपटॉप के फॉर्म में आ रहा है, और अब तो मोबाइल और टैबलेट्स आ गए हैं, जो एक कंप्यूटर काम करता था हमारे जमाने में जब हम छोटे बच्चे थे, वो आज के टाइम में एक छोटे से डिवाइस से हो जाता है। तो ये हो गया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। उससे क्या होता है, जितना हमारा लोहा, स्टील मटेरियल लगता था एक बड़े कंप्यूटर को बनाने में, आज उतने ही मटेरियल में हम ऐसे 10 सिस्टम बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि चीज हमारी उतनी रही, लेकिन जो पहले एक जने के लिए बनती थी, अब उतनी चीज में हम 10 जनों की नीड को सेटिस्फेक्शन कर सकते हैं। ये होता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। आज हमें सब पता है कि पेट्रोल, डीजल, ऑयल एंड गैस, एवरीथिंग, तो ये हमारा एक रिसोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, सब जगह सारी कंट्रीज ऑयल और गैस के लिए पीछे भागती हैं। आज से 300-400 साल पहले क्या ये रिसोर्स था? अगर उस वक्त किसी को तेल का कुआं मिलता तो उसको ये लगता है ये तो क्या गंदा पानी, बदबूदार पानी मिल गया, ये तो कुछ भी नहीं है। तो ऑयल एंड गैस आज से 400 साल पहले एक किस्म से प्रदूषण था, और हमें उसका पता ही नहीं था कि क्या करना है। आज के टाइम में जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई, वी नो कि हाउ प्रीसियस ऑयल एंड गैस इज। तो ये होता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। आप एनर्जी के क्षेत्र में देख लीजिए, पहले एनर्जी सारी कोल से आती थी, कोयला जलाते थे हम, उससे खाना बनाते थे, उसी से बिजली पैदा करते थे, सब कुछ। आज के टाइम में हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब बात करते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हमारे रिसोर्सेज को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो रिसोर्सेज जो होते हैं बच्चों, दो किस्म के होते हैं, एक तो होगा एनवायरमेंटल रिसोर्स और दूसरा हो गया टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स। कि हमारी, अब यही चीज अगर हम कंपेयर करें इंडिया, या आप इंडिया को भी छोड़िए, कोई भी एक साउथ अफ्रीका, जो अफ्रीकन कंट्री को वर्सेस अमेरिका से कंपेयर करें, अफ्रीका में इन्वायरमेंटल रिसोर्स बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी वो पिछड़े हुए, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हुई है। तो वो, उनको पता ही नहीं है कि उस रिसोर्सेज को कैसे यूज करें। तो बच्चों, दोनों किस्म के रिसोर्सेज बहुत जरूरी है। अब आते हैं कि हमने, ह्यूमंस ने अपने रिसोर्सेज के साथ कैसे छेड़छाड़ करी है। तो हमारा जो इन्वायरमेंट है, चाहे वो लैंड हो, चाहे एटमॉस्फेयर हो, चाहे इकोसिस्टम हो, हमने तीनों के साथ छेड़छाड़ करी है। जैसे मान लो लैंड के साथ हमने कैसे छेड़छाड़ करी है, हम इस छेड़छाड़ को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में देख सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्म क्या हुआ, हमने पहाड़ काट के सड़क बना दी, तो ये हमने लैंड फॉर्म चेंज कर दिया। या गड्ढा खोद के माइनिंग करी, ठीक है, वो हमने लैंड फॉर्म चेंज कर दिया। तो क्या होता है, जब पहाड़ को खोद करके सड़क बना दी तो लैंडस्लाइड्स बढ़ जाते हैं। जब माइनिंग करके हमने किया तो जो टॉप सॉइल होती है, जो फर्टाइल सॉइल होती है, जिसको बनने में हजारों साल लगते हैं, हम
कुछ ही साल के अंदर उस पूरी सॉइल को खत्म करके वहां पे माइनिंग करने लग जाते हैं। तो ये हो गया ह्यूमंस का डायरेक्ट इंटरफेरेंस विद द लैंड। इनडायरेक्ट कैसे हुआ कि हमने जंगल काट करके पहले वहां पे खेती करी, फिर खेती को मिटा करके वहां पे हमने शहर बसा दिया, तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट मॉडिफिकेशन। तो इसको कहते हैं लैंड यूज चेंज। जब आगे चल के जब आप बड़ी क्लासेस में आओगे तो वो होगा। तो ये मॉडिफिकेशन से पर्यावरण में क्या फर्क पड़ता है? तो बच्चों को क्या होता है, जो फॉरेस्ट होते हैं वो तो कार्बन को अब्सॉर्ब करते हैं, वो एक्सेस जो हीट होती है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है उसको अब्सॉर्ब करते हैं और उसको कूल रखने की कोशिश करते हैं। अगर हम उसको काट करके जब हम कंक्रीट के घर बना देते हैं तो जितनी भी हीट होती है वो रिफ्लेक्ट होती है और वहां का जो जो टेम्परेचर अपने आप ही बढ़ जाता है। तो ये लैंडफॉर्म मॉडिफिकेशन से भी बहुत पर्यावरण में फर्क पड़ता है। दूसरा हमने जो छेड़छाड़ करी है वो एटमॉस्फेयर के साथ करी है। वो कैसे करी है? हमने कई किस्म की गैसेस डाल ऐड कर दी। जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड आज से 100 साल पहले 0.03% होता था उसकी परसेंटेज एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन 78% है, कार्बन 0.03% है और बाकी सारी ट्रेस गैसेस है। लेकिन अब धीरे धीरे ह्यूमंस ने कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे कोयले गैस की ऑयल की फॉर्म में लॉक थी जमीन के अंदर, हमने उसको बाहर निकाला, जलाया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी। तो ये हो गया हमारा एटमॉस्फेरिक मॉडिफिकेशन। और इसी तरीके से मॉडिफिकेशन आता है जब हम लैंडस्केप को चेंज कर देते हैं। तीसरा होता है बच्चों इकोसिस्टम मॉडिफिकेशन। और इकोसिस्टम मॉडिफिकेशन का बेसिक जो है कि हमने सिंप्लीफिकेशन कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब यह है कि पृथ्वी पे जितनी भी एनर्जी है वो कहां से आती है? उसका सिर्फ सिंगल सोर्स है, सोलर सन। ठीक है, सूर्य से आती है और कहीं से एनर्जी नहीं मिलती है पृथ्वी को। ठीक है, कह सकते हैं बाकी डिस्टेंट स्टार से आती है बट वो इनसिग्निफिकेंट क्वांटिटी में। हमारी मेजर सोर्स है वो सूर्य है। सूरज और पृथ्वी में डिस्टेंस जो है वो बराबर है, कई सालों से बराबर चल रहा है। तो इसका मतलब हमारे को साल में जितनी सोलर एनर्जी आनी थी पृथ्वी पे वो एक समान है हर साल। अब क्या होता है, वो जो सोलर एनर्जी आ रही है उसको हम कन्वर्ट करते हैं, उसको हम स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स, वेजिटेशन। तो जो प्लांट्स और वेजिटेशन है वो सोलर एनर्जी को बायोमास में कन्वर्ट करती है। तो हमारा अगर सोलर एनर्जी कांस्टेंट है, एक फिक्स क्वांटिटी में आती है, तो इसका मतलब बायोमास जितना होना चाहिए वो भी फिक्स क्वांटिटी में हो गया। अब जो बायोमास अगर फिक्स क्वांटिटी में है तो जो बायोमास जो फूल पत्तियों को खाने वाले जानवर हैं जिसको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं, वो प्राइमरी कंज्यूमर्स, क्योंकि ये एनर्जी फिक्स है तो प्राइमरी कंज्यूमर्स का नंबर भी फिक्स होगा। तो और जो शेर चीता जो जानवरों को खाते हैं तो नेचुरली उनका नंबर भी फिक्स होगा। और जब भी एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पर जब भी ट्रांसफर होती है तो उसमें कुछ लॉसेस होते हैं। तो इसका मतलब जितने ज्यादा पेड़ पौधे होंगे उससे कम हमारे घास फूस खाने वाले जानवर होंगे और उससे कम हमारे मांस खाने वाले जानवर होंगे। और जो ह्यूमंस हैं वो सबसे कम नंबर में होंगे। ह्यूमंस में क्यों कहता हूं सबसे कम नंबर में होंगे? क्योंकि बायोलॉजिकली ह्यूमंस आर द वीकेस्ट एनिमल ऑन अर्थ। सबसे कमजोर प्राणी है अर्थ में। क्यों कमजोर प्राणी है? अगर आप देखेंगे, अगर एक कुत्ता भी जो हमसे 1/6 ऑफ बॉडी वेट है हमारा, अगर कुत्ता भी भौंकता हुआ तेजी से अगर हमारे पास आएगा और हमारे पास कोई डंडा या हथियार नहीं होगा तो हम कुत्ते से भी हार जाएंगे। So I'm just giving you in a very joking manner an example कि why humans are the weakest animals on earth and therefore जो humans का नंबर है वो सबसे कम होना चाहिए। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हम लोगों का जो ह्यूमन नंबर था करीब करीब जीरो के करीब था बहुत साल पहले, 8000 बीसी से पहले। यहाँ पे एक जीरो मिस हो गया है। 8000 बीसी से तो ह्यूमन नंबर बहुत कम थे पूरे पृथ्वी पे। फिर जब ह्यूमन ने खेती करना सीखा 4000 बीसी पहले, तो ह्यूमंस टोटल ह्यूमन नंबर पृथ्वी पे 1 मिलियन थे। तो ये एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, न्यूलिथिक ट्रांसफॉर्मेशन इसको बोलते हैं। तो देयर वाज अ सडन जंप, एकदम से ह्यूमन नंबर्स बढ़े।
फिर उसके बाद ह्यूमन नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे थे बच्चे, कहीं 6000 साल तक ह्यूमन नंबर बहुत ज्यादा नहीं बढ़े। फिर उसके बाद एकदम से 18वीं शताब्दी में ह्यूमन नंबर बहुत तेजी से बढ़ने लगे। वो हुआ इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से। और अब हमारे पास अर्बनाइजेशन हो गया। तो आज के टाइम में 2000 में हमारे 6 बिलियन हुए थे और अब हमारे पास 7.5 बिलियन के करीब पॉपुलेशन है। तो ये जो एकदम से देखो, हमारे को 1 बिलियन पॉपुलेशन पहुंचने में हमें करीब 10,000 साल लगे और 200 साल के अंदर ही हम 1 बिलियन से 6 बिलियन में हो गए। आप देख रहे हो बच्चे, 200 साल में 6 गुना बढ़े, 1 बिलियन पहुंचने में हमें 10,000 साल लगे। इसको कहते हैं जर्क। हमने एकदम से, इसको कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हम एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गए। इसके वजह से क्या हुआ बच्चों, जो ह्यूमन नंबर जो सबसे कम होने चाहिए थे ऊपर, अब वो हम बढ़ गए हैं। और ये जो इसको सपोर्ट कैसे मिल रहा है, हमने यहां से स्पीसीज को इलिमिनेट करना शुरू कर दिया। हमने धीरे धीरे मांस खाकर जानवरों को कम करना शुरू कर दिया। हमने फॉरेस्ट और वेजिटेशन को हटा करके खेती करना शुरू कर दिया और बाद में उसको शहरों में बदल दिया। तो अब क्या हो गया कि ऊपर की चीज तो हमारी धीरे धीरे बढ़ रही है और नीचे की चीजें हमारी धीरे धीरे कम हो रही है। और जानवरों में भी हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं, मतलब जो हमारे काम के जानवर होते हैं जैसे गाय, पशु, जो हमारे काम आते हैं उनको तो हम बढ़ाते हैं, ब्रीड करते हैं। और जो जिनको आज के दिन हमें लगता है कि हमारे काम के नहीं, और हो सकता है वो हमारे काम के हो, उसका बारे में हमें पता नहीं है, उनको हम मरने देते हैं। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी लॉस। हम हर मिनट में, अभी हर एक मिनट में पृथ्वी से एक जेनेटिक स्पीसीज लॉस हो रही है। दिस इज व्हाट द लॉस पेस एट विच वी आर लूजिंग द बायोडाइवर्सिटी। बहुत तेजी से हम अपने ना बाकी चीजों को कम कर रहे हैं। अब मैं आता हूं आपके मेन विषय पे कि अगर हमारे जो है 4 बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स होते हैं। 4 बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स क्या होते हैं बच्चों? वो होता है वेजिटेशन, दूसरा होता है सॉइल, तीसरा होता है वाटर और चौथा होता है एयर। तो सॉइल, वाटर, एयर एंड वेजिटेशन। और ये चारों आपस में इंटरलिंक्ड है। जहां पे पानी होगा वहां की सॉइल अलग होगी। जहां पे जैसे रेगिस्तान की सॉइल देखोगे और कोस्टल एरिया की सॉइल देखोगे, बिल्कुल अलग मिलेगी। तो जहां पे पानी और सॉइल एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। मैंने आपसे शुरू में बात किया कि एटमॉस्फेयर और पानी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। वेजिटेशन पानी के साथ, जैसे रेगिस्तान में कैक्टस, मतलब जो थॉर्न वाले लीव्स होंगे, और जहां पे ज्यादा बारिश होगी वहां पे दूसरे किस्म के लीव्स होंगे। जहां पे बर्फ पड़ती है वहां पे कॉर्नी फॉरेस्ट होते हैं, जहां पे लेदरी लीव्स होती हैं। तो इस तरीके की वेजिटेशन भी जो होती है वो क्लाइमेट से भी इन्फ्लुएंस होता है, पानी से। तो ये चारों चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अब ह्यूमस जो है वो अलग से बैठ करके चारों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो अब मैं आपसे बात करूंगा कि ह्यूमस जो है पानी के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। हाउ द तो सबसे पहली बात हम समझते हैं कि पानी जो है वो सबसे फंडामेंटल रिसोर्स भी है और वर्सेटाइल रिसोर्स भी है। जैसे मैंने बताया कि पानी जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, उसके अंदर सभी पदार्थ घुल जाते हैं। तभी वो इंडस्ट्रीज में, सभी इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल के तौर पे पानी होगा, तभी इंडस्ट्री चलेंगी। और इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि पानी इतना जरूरी है कि बिना बिना पानी के हम खेती नहीं कर सकते, अनाज नहीं उगा सकते, और कई पर्पज से पानी का कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। हम पानी की जगह तेल नहीं पी सकते। अगर प्यास लगेगी तो पानी ही पीना पड़ेगा, तो पानी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन ये बात भी है कि पानी बहुत लिमिटेड है। और पानी लिमिटेड क्यों है? आप लोगों ने देखा होगा कि हम तो एक तरफ कहते हैं कि पूरी पृथ्वी का 3/4 भाग तो ओशन ही है, तो पानी तो बहुत ज्यादा है। लेकिन जहां यहाँ पे मैं पानी की जो बात कर रहा हूँ, फ्रेश वाटर की बात कर रहा हूँ बच्चों। जो फ्रेश वाटर है उसमें से 90 टोटल, अगर मैं पानी को 100 यूनिट्स मान के चलूं, अगर 100 यूनिट पानी है तो 97 यूनिट जो पानी है वो तो खारा पानी है ओशंस में, जिसको हम पी नहीं सकते। सिर्फ 3% पानी है जो फ्रेश वाटर है। लेकिन ये 3% पानी भी हमें अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस 3% का जो हिस्सा है, 75 हिस्सा तो हमारा ग्लेशियर्स और आइस कैप्स की फॉर्म में। और ऐसा नहीं है कि हमें पानी की प्यास लगी है और पानी की कमी है तो हम ग्लेशियर्स और आइस कैप्स को मेल्ट करके पानी बनाएंगे। ये चीज नहीं कर सकते हम। तो
और जो 14% पानी है वो बहुत ज्यादा गहराई में है, 700 मीटर से भी ज्यादा गहराई में है। और आज के टाइम में हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इतने गहराई से जमीन के अंदर जाके वो पानी लेके आए। तो इस 3% का 89% पानी ऐसा है कि जिसको हम तो यूज ही नहीं कर सकते। और जो 11% पानी है वो भी 100 मीटर से ज्यादा है। 100 मीटर से ज्यादा का मतलब हो गया कि उसको निकालने में इतनी एनर्जी, इतनी बिजली लगेगी कि उसको भी हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अगर स्क्रीन में देखोगे, जीरो के ऊपर छोटा सा माइनस का साइन लगाया है। तो एक्चुअली में जो पानी हम जिसको एक्सेस कर सकते हैं वो 0+ है। बहुत थोड़ा सा पानी है जो हमें कर सकते हैं। और वो 0+ पानी जो है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर की फॉर्म में, थोड़ा सा रिवर्स की फॉर्म में, थोड़ा सा सॉइल मॉइस्चर की, और थोड़ा सा लेक। तो बहुत कम पानी है बच्चे, 3% का भी बहुत कम हिस्सा ही हमारे को अवेलेबल है, बाकी पानी हमें अवेलेबल नहीं है। इसलिए पानी को लिमिटेड रिसोर्स बोलते हैं कि ये बहुत फाइनाइट और लिमिटेड है। लेकिन एक और अच्छी बात है कि पानी जो है ना वो रिन्यूएबल भी है। मतलब अगर पानी कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि पानी बार बार एक साइकिल के थ्रू हमें मिलता रहता है। और वो पानी हमारे को ना, जिसको हम इंग्लिश में तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं, हिंदी में मेरे को नहीं पता इसका क्या एग्जैक्ट वर्ड है। लेकिन पानी जो है वो साइकिल के थ्रू हमारे रोटेट होता रहता है, एक साइकिल बनती है। ओशन से पानी भाप बन के हमारा बादल बनता है, बादल से वो बारिश होती है, बारिश से पानी बह करके वापस से ओशन में जाता है। और ये हमारी पूरी एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। तो ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बच्चों जो आपको इतनी आसान देखने में लग रही है, वो एक्चुअली इतनी आसान है नहीं। जैसे जब पानी जो पृथ्वी पे पड़ता है, या तो वो हिमालय में पड़ेगा तो वो फ्रोज होकर के ग्लेशियर्स बन जाएगा। जमीन में पड़ेगा तो हो सकता है वो पानी का काफी सारा हिस्सा हमारा वनस्पति के अंदर चला जाएगा। और आपको पता है, even our human body, nearly 70% of our body weight is water। 70% हमारा वजन पानी है। इसी तरीके से अगर फूल पत्ती जितनी भी चीजें हैं उसमें 80 से 90% पानी होता है, खाली बाकी जो मास होता है उसका बहुत कम होता है। तो पानी जो है वो जितनी भी बायोटिक, जितने भी बायोलॉजिकल स्पीसीज हैं, वनस्पति, ह्यूमन, जानवर, उनके अंदर चला जाता है। और काफी सारा पानी हमारा ग्राउंड वाटर में जाता है, कुछ लेक्स में जाता है, और फिर वो बह करके ओशन में। तो ये पानी का ना अलग अलग रिटेंशन टाइम है। तो अगर मान लो पानी एटमॉस्फेयर में ऑन करीब करीब 10 दिन रहता है। नदी में अगर पानी रहता है, तो अगर मैं पूरे वर्ल्ड की नदियों का टाइम लगाऊं, क्योंकि सारी नदियां ओशन की तरफ जाती हैं, तो करीब करीब 2 हफ्ते का उनका एवरेज रिटेंशन टाइम है। लेक्स में पानी थोड़ा काफी दिन तक रहता है, वो 10 हफ्ते रहता है उसका पानी। अगर हमारा सॉइल मॉइस्चर की फॉर्म में है तो 50 हफ्ते तक रहता है। अगर हमारा वनस्पति के में है तो 20 दिन रहता है। ग्राउंड वाटर, अगर हमारा पानी जमीन के अंदर चला जाता है, जो अंडरग्राउंड वाटर जिसको बोलते हैं, वो पानी हमारे पास 10,000 साल तक रहता है। और आइस कैप्स में 15,000 साल तक रहता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जो हमारी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है वो हमारी ना अलग अलग डिटेंशन टाइम की है। हमारी मान लो समुद्र से पानी बना और समुद्र में ही बारिश हो गई, तो हमारी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल 1 दिन की हुई। समुद्र से पानी बना लेकिन हमारे कोस्टल एरिया में ही बारिश हो गई, जैसे बॉम्बे चेन्नई में हो गई, वो वापस से ओशन में बह के आ गया, तो हमारी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कितनी हुई, 1 हफ्ते की हो गई। अगर बारिश हुई लेकिन वो नदी में और थोड़ी सी दूर जाके गिरी, तो हमारी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल 1 साल की हो गई। इसी तरीके से अगर हमारी आइस कैप में पानी गया तो उसको वापस ओशन में आने में 10,000 साल लगेंगे, तो हमारी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल 10,000 साल की हो गई। तो ये जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है बच्चों, अलग अलग ड्यूरेशन की होती है। अब मैं अगर सवाल पूछूं हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए ये अच्छा है कि पानी 1 दिन की हाइड्रोलॉजिकल साइकिल रहे या 10,000 साल की हाइड्रोलॉजिकल साइकिल रहे। अब मैं आपसे क्योंकि 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं आपको आंसर बताता हूं। हमारे लिए अच्छा है कि पानी जमीन में ज्यादा से ज्यादा देर रहे। पानी जमीन में ज्यादा से ज्यादा देर रहे मतलब हम चाहते हैं कि हमारी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है वो ज्यादा से ज्यादा लंबी हो। अगर हमारे को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ज्यादा से ज्यादा लंबी करनी है तो हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे कि जो हमारा पानी है वो अंडरग्राउंड वाटर की फॉर्म में ज्यादा रहे, रादर देन पानी हमारा रिवर्स की फॉर्म में रहे। क्योंकि रिवर्स में तो 2 हफ्ते ही रहेगा और अंडरग्राउंड पानी जाएगा तो वो 10,000 साल रहेगा।
तो हमारे को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बढ़ानी है, तो हम चाहेंगे कि पानी आइस ग्लेशियर्स की फॉर्म में रहे, अंडरग्राउंड वाटर की फॉर्म में रहे, बायोटा के अंदर रहे, सॉइल मॉइस्चर की फॉर्म में रहे, तभी वो पानी हमारे पास ज्यादा देर रहेगा। अगर हमारा पानी सिर्फ रिवर्स और उसमें गिर गया तो पानी वो बह करके वापस ओशन में चला जाएगा और हमें पानी ज्यादा दिन नहीं मिलेगा। तो अगर हमें हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बढ़ानी है बच्चों, तो हमारे को अपने ग्राउंड वाटर को बढ़ाना पड़ेगा। अब मैं आपको ना एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं। अगर मान लो आपके शहर में टोटल जो बारिश हो रही है, पानी का एक मेन सोर्स है बारिश, ठीक है। तो अगर जो टोटल बारिश हो रही है, अगर मैं कहूं x प्लस वाई प्लस जेड अमाउंट की बारिश हो रही है, तो इसमें x अमाउंट ऑफ जो पानी होता है वो इवेपोरेशन होके के भाप बन करके एटमॉस्फेयर में चला जाता है। y अमाउंट का पानी जो होता है वो बह करके नदियों में और नदी के थ्रू ओशन में जाता है। और जेड अमाउंट का वाटर हमारा उसके अंदर सॉइल के अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है, वो धीरे धीरे बह करके अंडरग्राउंड वाटर बन जाता है। तो जो टोटल बारिश का पानी है, थोड़ा सा भाप बन के जाता है, थोड़ा सा हमारा बारिश बन के जाता है और थोड़ा सा हमारा अंडरग्राउंड में जाता है। अब होता है क्या है बच्चों, अब हमने ह्यूमंस ने क्या इंटरफेरेंस किया है। अगर क्लाइमेट चेंज होता है, तो क्लाइमेट चेंज जब भी होता है तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हमारा इवेपोरेशन लॉस बढ़ेगा, तो वो बन जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स। इसी तरीके से जब हम जंगल काट करके कंक्रीट जंगल बना देंगे, तो हमारा बहने वाला पानी भी ज्यादा हो जाएगा। जैसे आपको मैं एग्जांपल बताता हूं, मान लो एक नदी है, नदी के एक तरफ पूरी रॉकी लैंड है, पूरे पत्थर ही पत्थर है, और दूसरी तरफ घास है, ठीक है। बारिश हुई तो किधर का पानी नदी की तरफ जल्दी आएगा? जहां पे सड़क बनी हुई है वो पानी बह के जल्दी नदी में आएगा, या जहां पे घास है वो पानी बह करके जल्दी नदी में आएगा? ऑब्वियसली आप कहेंगे सड़क वाला पानी जल्दी आएगा। तो इसी तरीके से जब हम जंगल काट करके शहर बना देते हैं, तो हमारा पानी का रन ऑफ बढ़ जाता है, तो हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को कम कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा हमारा y प्लस डेल्टा वाई। तो ये जो हमारा इवेपोरेशन बढ़ा, रन ऑफ बढ़ा, तो हमारा उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि हमारा ग्राउंड वाटर में जो पानी जा रहा है वो जेड माइनस डेल्टा एक्स माइनस, मतलब जो इतना पहले पानी जाता था अब वो इतना सा ही पानी जाएगा हमारा जमीन। इसी तरीके से हमारा क्या हो रहा है, जमीन का पानी जो हो रहा है बच्चों वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो हमारा ग्राउंड वाटर डिप्लीट कर रहा है, और जो हमारे पेरिनियल रिसोर्सेज थे, जो साल भर चलने वाली नदियां थी, वो सूख रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, शहरों में आजकल क्या हो रहा है, दिल्ली शहर में जैसे और बड़े बड़े शहरों में जो जमीन का पानी है, ये जमीन का पानी है, ये ग्राउंड लेवल है। यहाँ पे क्या होता है, जमीन का पानी में हमने यहाँ पे ना पंप लगा देते हैं, ट्यूबवेल लगा देते हैं, और जमीन के पानी को निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं। इसी तरीके से जमीन का पानी नेचुरली इसके अंदर भी जाता है। इसके अंदर इस तरीके से जाता है कि बारिश होती है, बारिश का पानी सॉइल के थ्रू होकर के ग्राउंड, तो एक किस्म से ग्राउंड में पानी अंदर आ भी रहा है और ग्राउंड से पानी बाहर जा भी रहा है। लेकिन जब हम कंक्रीट की सड़कें बना देते हैं, बिल्डिंग्स बना देते हैं, तो पानी को नीचे जाने की जगह नहीं मिलती है, तो पानी हमारा जमीन के अंदर नहीं जा पा रहा है और हमारे ट्यूबवेल्स बढ़ते जा रहे हैं। उसका होता क्या है बच्चों फर्क, उसका फर्क ये होता है कि धीरे धीरे हमारा ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जा रहा है। अब ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जाने का से होता क्या है, इससे ये होता है कि जब भी हम ट्यूबवेल से पानी निकालना शुरू करते हैं, तो क्या होता है कि ट्यूबवेल से हम खींचते हैं पानी को, तो जब पानी का लेवल नीचे हो गया तो क्या ट्यूबवेल से निकलेगा बच्चों, खाली मिट्टी निकलेगी। तो ये जो मिट्टी होती है यहाँ की, वो ट्यूबवेल से बाहर आ जाती है जब पानी का लेवल नीचे जाता है। तो फिर जब धीरे धीरे पानी आना बंद हो जाएगा, फिर आप क्या करते हो, प्लम्बर को बुलाते हो, कहते हो कि हमारे ट्यूबवेल से पानी नहीं आ रहा। प्लम्बर बोलेगा कि आप इस ट्यूबवेल को ना 10 फीट और नीचे गहरा करवा लो। फिर हम उसको 10 फीट और नीचे गहरा करवा देते हैं। फिर हम यहाँ पे पहुंचते हैं तो यहाँ की मिट्टी भी निकाल देते हैं। फिर हम उसके यहाँ की मिट्टी निकालने के बाद फिर उसको गहरा करते हैं, फिर हम यहाँ की मिट्टी भी निकाल देते हैं। तो होता क्या बच्चों, धीरे धीरे क्या कर रहे हैं हम, जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो कि हमारा पेरिनियल रिसोर्स है, साल भर चलने वाला रिसोर्स है, उसको हम परमानेंटली डैमेज कर रहे हैं, उसकी मिट्टी धीरे धीरे निकालते जा रहे हैं। तो हो क्या रहा है, नीचे जमीन के अंदर हम एक ना कैविटी बना रहे हैं, खोखलापन पैदा कर रहे हैं, और ये कैविटी से क्या होगा बच्चों, जो हमारा जमीन का पानी होगा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज के पास हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि ये जो एक्वीफर की सॉइल होती है हम उसको वापस से क्रिएट कर सके।
और आजकल आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि अचानक से सड़क धंस गई या जमीन धंस गई। जो जमीन क्यों धंस रही है? वो जमीन इसलिए धंस रही है कि बच्चों हमने ना ग्राउंड वाटर नीचे जाने के वजह से यहाँ पे खोखलापन पैदा कर दिया है। तो ऊपर का जो सॉइल का प्रेशर होता है उससे हमारी जमीन नीचे-नीचे धंस रही है। और मान लो दिल्ली जैसे शहर में हल्का सा भी अर्थक्वेक आ गया, उसका इम्पैक्ट क्या होगा? अर्थक्वेक आते के साथ ही बिल्डिंग के प्रेशर की वजह से पूरी जमीन जो होगी बिल्कुल नीचे बैठ जाएगी और ये जो एक्वीफर होगा वो परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। परमानेंटली डैमेज मतलब हमारे पास कुएं का पानी, जमीन का पानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, जिसपे हम हमेशा साल भर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि नदियां तो सूख जाती हैं और जमीन का पानी है जो साल भर होता है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और ऐसी जब सिचुएशन आएगी तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो होता है बच्चों, दूसरा कारण क्या हो रहा है, जब रन ऑफ बढ़ता है तो रन ऑफ बढ़ने से क्या होता है, नदी का एकदम से पानी ऊपर होता है और हमारी फ्लड्स, बाढ़ बाढ़ आनी शुरू हो जाती है। तो हमने ये देखा है पानी की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लड की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ड्रॉट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। ये सारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। तो जो हमारे डिजास्टर्स होते हैं जैसे फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन्स, टोर्नेडो, हरिकेन्स, क्लाउड बर्स्ट, ये सब हमारे पानी और क्लाइमेट चेंज के इंटर रिलेशनशिप है और ये हमारे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपको बच्चों को थोड़ा डाटा दिखाता हूं। अगर मैं पूरे वर्ल्ड में नेचुरल डिजास्टर्स की बात करूं, नेचुरल डिजास्टर, साइक्लोन, फ्लड्स, अर्थक्वेक, ड्रॉट्स एंड ऑल दीज थिंग्स, एशिया जो है जहां पे हम रहते हैं, इंडिया एशिया का हिस्सा है। वर्ल्ड के सारे नेचुरल डिजास्टर्स में एशिया सबसे ज्यादा वनरेबल है, सबसे ज्यादा डिजास्टर्स एशिया के अंदर होते हैं। और जो ह्यूमन लॉस है, क्योंकि एशिया में ज्यादातर गरीब कंट्रीज हैं, तो जो 43% डिजास्टर अगर यहाँ पे होते हैं तो ह्यूमन लाइफ जो नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से 68% लाइफ यहाँ से लॉस हो रही है। और हम पैसे की टर्म में बात करें तो 50% डैमेज हमारा यहाँ पे एशिया में हो रहा है। अगर मैं आपको एक डाटा के थ्रू बताता हूं कि सन टोटल नंबर ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स दैट इज साइक्लोन, फ्लड्स, ड्रॉट्स एंड अदर थिंग्स जो क्लाइमेट और वाटर से रिलेटेड है, 70 के दशक में टोटल नंबर ऑफ डिजास्टर जो हुए थे वो 20 थे। 80 के दशक में वो बढ़ के 27 हो गए। 90 के दशक में वो बढ़ के 47 हो गए। 2000 के दशक में वो बढ़ के 63 हो गए और 2010 के दशक में 86 हो गए। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि हमारे नेचुरल डिजास्टर हर साल हर बार बढ़ते जा रहे हैं। तो पहले 5 साल में एक बार बाढ़ आती थी, अब हर साल बाढ़ आती है। पहले 5 साल में एक बार साइक्लोन होता था, अब हर साल साइक्लोन, और साल में तो बल्कि अब 2 बार भी आने लग गए साइक्लोन। ड्रॉट्स कभी कभार होते थे, सूखा कभी कभार पड़ता था, अब देखते हैं हर दूसरे साल में सूखा पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है बच्चों हमारे क्लाइमेट चेंज की वजह से नेचुरल डिजास्टर्स बढ़ रहे हैं। और ये अब हमारे एक किस्म से अगर मैं फैक्टर वाइज बोलूं तो 70 से लेकर के 2010 के बीच में करीब करीब 4.5 गुना हमारे नेचुरल डिजास्टर्स बढ़ गए हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज और वाटर से रिलेटेड है। इसी तरीके, अच्छा टाइम हो गया? Yes, टाइम हो sir. गया, I mean, yeah, sir. In maybe 5-10 minutes we can ठीक है। wind up. चलो बच्चों, मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं भी आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा, खाली नेहा मैडम पे डिपेंड मत रहना। मैं भी आपको आगे चल के वीडियोस, फोटोज खूब दिखाया करूंगा। आज तो क्योंकि पहला हमारा इंटरेक्शन था तो मैं आपको बहुत फंडामेंटल लेवल पे बता रहा था। मुझे नहीं पता कितनी चीजें आपको पहले से पता थी, कितनी चीजें नहीं, लेकिन मैं आपको इस पिक्चर के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ। जो ओशन करंट्स का मैं बता रहा था बच्चों, ये जो ओशन करंट्स होते हैं ये इस तरीके से हमारे ना पूरे ग्लोब में, पूरे पृथ्वी पे ये करते हैं। और 2 किस्म के होते हैं, वार्म करंट एंड कोल्ड करंट। और जहां पे भी कोल्ड करंट, ओशन करंट्स होता है वहां पे ड्रायर होता है, और जहां पे भी वार्म ओशन करंट होते हैं वहां पे खूब बारिश होती है। तो आप देखोगे ये वाला हिस्सा, अगर आप इस हिस्से को और इस हिस्से को जो कि एक ही लैटिट्यूड में है, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड करंट है तो यहाँ पे देखो सूखा है, यहाँ पे वार्म करंट है तो यहाँ पे खूब सारी ग्रीनरी है। तो ये जो है कि वाटर और क्लाइमेट जो होता है बेटे आपस में इंटरलिंक्ड है। और अगर हम इस वाले मैप की इमेज को अगर यहाँ पे सुपर इम्पोज करें तो जो ड्राई कंडीशंस हैं और वेट कंडीशंस हैं, हम क्लियरली मैप करते हैं ओशन करंट्स की, कि वो वार्म ओशन करंट्स है,
कोल्ड ओशन करंट्स हैं, तो क्लाइमेट एंड वाटर आर वेरी मच इंटरलिंक्ड एंड दे आर टू बी डन दैट वे। तो मैं बच्चों बताने के लिए तो बहुत कुछ है, मुझे नहीं पता कितना रेलेवेंट है, लेकिन अब मैं आपसे ना बातचीत करना चाहूंगा, क्योंकि जितनी चीजें आप मेरे से बातचीत करके पूछ लीजिए एंड आई विल बी वेरी हैप्पी, मतलब मुझे बहुत खुशी होगी आपके क्वेश्चंस को आंसर करने में। हम अपनी बातचीत तो कल भी जारी रखेंगे, कल भी बहुत सारी चीजें बताने की हैं। तो अभी तो आपके क्वेश्चंस ही पूछूंगा। मैंने बताया था ना कि मैं तो बोलने लगता हूँ तो 3-4 घंटे तक बोलता ही चला जाता हूँ, तो ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट इंटरेक्शन। आई एम स्टार्टिंग माय वीडियो। Monmi, please give the mic Yes, ma'am. rights to everyone. Yeah. Sure, I have shared. First of all, I would like to thank Professor Arun Kansal for such a detailed session and such an informative session, sir. I mean, there were many aspects जो हम लोग ने अभी तक cover नहीं किया है, and you have touched upon it, the fundamentals basically, sir. I mean, it आपका बहुत ही ज़्यादा informative था, so thank you so much, sir. And we look forward to your other 3 sessions. I'm sure बच्चे भी equally excited होंगे आपके बाकी 3 sessions के लिए. And meanwhile, I would request everyone to, if they have any questions, आप लोग please अपना mic rights भी दे दिया है, आप लोग please अपना questions raise कर सकते हैं mic on करके. आप हिंदी में भी पूछ सकते हैं, इंग्लिश में भी, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। सो कुछ भी अगर आपको पूछना है, टीचर्स भी आप पूछ सकते हैं इफ देयर इज एनीथिंग। सर एक क्वेश्चन है ऑलरेडी by Dhanvi Rastogi. Sir, is it possible to filter sea water and use it for drinking? A similar question from Miss Dio. Sir, can we clean the oceans and drink water? और एक क्वेश्चन और है कि सर अगर हम अपने घर समुद्र के किनारे बनाएंगे नहीं तो खोएंगे ही नहीं। अच्छा, तीनों क्वेश्चन बड़े मजेदार हैं और तीनों का चलो मैं आंसर करता हूँ। सबसे पहले बात है कि चलो ये जिज्ञासा आपके अंदर आए कि हम समुद्र के पानी को भी तो साफ करके पी सकते हैं। तो पहले बच्चों मैं बताता हूँ फिल्टर का मतलब क्या होता है। फिल्ट्रेशन से पानी साफ नहीं होगा ओशन का। फिल्ट्रेशन में आप बेसिकली कपड़े से या मट्टी के या किसी कार्बन कॉलम से पानी को छान रहे हो। अगर आप ये देखो, अगर आप पानी में चीनी या नमक घोलोगे और उसको कितना भी छान लो, चीनी और नमक जो है पानी में से जाएगा नहीं। तो जब पानी में नमक घुला होगा, क्योंकि ओशन वाटर सलाइन है, उसमें नमक घुला हुआ है, तो आप कैसे उसको नमक को पानी से अलग कर सकते हो? खाली बाई उसको बॉईल करके, उसको भाप में कन्वर्ट करके और उसको फिर से कंडेंस करके, जिसको हम डिस्टिलेशन बोलते हैं। तो समुद्र के पानी को अगर डिस्टिलेशन करके अगर पीने के लिए लेंगे तो उसमें बच्चों बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। आप ये देखो, समुद्र के पानी को अगर हम लोग पीने के लिए ऐसे उबाल करके कन्वर्ट करें, इतनी ज्यादा हमारे को ऑयल और या फॉसिल फ्यूल बर्न करना पड़ेगा, उससे तो बल्कि और भी मुसीबत बढ़ जाएंगी। हालांकि आजकल के टर्म्स में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सोलर एनर्जी से हम पानी को कन्वर्ट करें, सोलर एनर्जी के थ्रू पानी को, समुद्र के पानी को साफ करें, लेकिन वो थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं उससे। लेकिन हमारी जो पूरी पॉपुलेशन है 7.2 बिलियन पॉपुलेशन, इतने सोलर एनर्जी से इतना साफ नहीं हो सकते कि सारी पॉपुलेशन को वो पानी मिल सके, और हमें खेती भी करनी है पानी से, तो इतना सारा पानी खाली सोलर एनर्जी से तो ओशन का पानी साफ नहीं हो सकता। और अगर हम ऑयल एंड गैस और कोयले को जला के पानी को साफ करेंगे तो बहुत मुश्किल है। टेक्नोलॉजिकली इट इज पॉसिबल, टेक्निकली हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमारे इकोनॉमिकली हम ऐसा कर ही नहीं सकते। पानी की जो कॉस्ट होगी, 1 लीटर पानी 200 रुपए में मिलेगा बच्चों, अगर हम समुद्र के पानी को ऐसे साफ करेंगे। दूसरा, अगर हम समुद्र के पास घर नहीं बनाए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हमें अगर हम देखेंगे, जैसे जो लोग आप लोग काफी सारे नॉर्थ ईस्ट रीजन से सुंदरबंस हैं या जितने भी कोस्टल एरियाज हैं जहां पे साइक्लोन्स वगैरह आते हैं, पहले बच्चों वहां पे मैंग्रोव फॉरेस्ट होते थे। तो कोई भी घर अपना बिल्कुल समुद्र के किनारे नहीं बनाता था। There is a buffer belt between coastal line and the human settlement, and there used to be a buffer line of mangrove forest. वो मैंग्रोव फॉरेस्ट करते क्या है, जब भी साइक्लोन पृथ्वी लैंड के अंदर आता है तो मैंग्रोव फॉरेस्ट से उसकी जो एनर्जी होती है, जो हवा की ताकत होती है, वो खत्म हो जाती है, और जब तक हमारे घरों तक पहुंचेगा काफी कुछ वो डिफ्यूज हो जाता है। तो एक्चुअली में बहुत पुराने जमाने में
मैंग्रोव फॉरेस्ट होते थे जो कि इस तरीके की आपदाओं को अब्सॉर्ब करते थे, लेकिन हमने क्या किया, हमारी पॉपुलेशन बढ़ी, हमारी ग्रीड बढ़ी और हम लोगों ने मैंग्रोव फॉरेस्ट को काट करके कोस्टल सिटीज बनानी शुरू कर दी है, जो कि एक गलत डेवलपमेंट हुई, जिसकी वजह से जो इम्पैक्ट साइक्लोन का इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन लॉस एज वेल एज इकोनॉमिक लॉस हैज इंक्रीज। तो ये मेरा आपके क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू सर। सर एक और है क्वेश्चन आपके लिए सर, उसमें लिखा है वी हैव सो मेनी क्लीनिंग प्रोसेसेस, तो उसमें सर कांट वी क्लीन इट? देखो बच्चों, मैंने यार ना आज की अपनी टॉक में ना पोल्यूशन के बारे में जिक्र नहीं किया। हमारा एक तरफ तो पानी कम होता जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, दूसरी तरफ जो पानी बचा वो पोल्यूटेड भी होता जा रहा है। वो एक हमारे के से कहते हैं ना दोहरी मार पड़ रही है हमारे पे। तो हमारे पास टेक्नोलॉजीज हैं जो कि क्लीनिंग करती है, लेकिन बच्चों कोई भी पानी को साफ करने की जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें दो चीजें लगती हैं, केमिकल लगते हैं और बिजली लगती है, क्योंकि पानी वैसे साफ नहीं हो सकता बिना केमिकल्स और बिना बिजली के। तो एक किस्म से क्या हो रहा है, जितना पानी पोल्यूट कर रहे हैं और जितना हम पानी को साफ करेंगे उतनी ज्यादा बिजली की खपत होगी, जितनी ज्यादा बिजली की खपत होगी उतना ज्यादा हमारा कोयला जलेगा बिजली पैदा करने के लिए, उतना ज्यादा कार्बन एमिशन होगा। इसी तरीके से जो हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं पानी को साफ करने के लिए, वो केमिकल्स हमारा एक किस्म से हजार्डस वेस्ट की फॉर्म में बाहर आता है, जिसको कि डिस्पोज करने के लिए हमारे को फर्दर प्रॉब्लम होगी। तो पानी को साफ करने के लिए टेक्नोलॉजीज हैं और ऑफ कोर्स मैं आपको वो बताने लगूंगा तो मुझे 5-6 घंटे और लगेंगे, लेकिन हाँ, ज्यादातर हर एक पोल्यूटेंट्स को निकालने के लिए टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन टेक्नोलॉजीज आर नॉट इजी, दे आर कॉस्टली। और जैसे घरों में अगर हम आरओ सिस्टम भी लगा रहे हैं तो बच्चे आरओ बिजली भी खाता है और आरओ की मेंटेनेंस के भी खर्चे होते हैं और आरओ से पानी वेस्ट भी होता है, ये आपको पता ही होगा। तो इसी तरीके से सभी वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजीज के अपने नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है, तो हमारे को कोशिश ये करनी है कि पानी कम से कम पोल्यूट हो। Thank you, sir. And sir, there's one last question. I think we can take that, but it is more related to the industrial waste. How can it be treated before dumping them into water bodies? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसका आंसर 2 लाइन में नहीं हो सकता है, लेकिन बच्चों हमारे को ना देखो, हमारी प्रकृति के अंदर एक खास बात है कि प्रकृति को ना सेल्फ प्यूरिफिकेशन दैट इज उसको रिजेनरेट करने की ना एक ताकत होती है। जैसे अगर आप किसी जमीन से घास को निकाल दोगे तो आप देखोगे 6-7 महीने बाद दोबारा घास उग जाएगी। इसी तरीके से अगर पानी गंदा भी हो जाता है तो नदी के अंदर क्षमता होती है कि उसको अपने आप को साफ कर लेती है। इसी तरीके से हम ना नदियों को देवी और भगवान का रूप में मानते हैं कि पानी के अंदर जैसा गंगा में हम नहाए तो इसका मतलब ये नहीं कि गंगा मैली हो गई, गंगा साफ भी अपने आप से हो जाती है। अब जब कोई भी चाहे इंडस्ट्रियल वेस्ट हो चाहे कोई भी वेस्ट हो, उसको जब हम नदियों में डंप करते हैं, हमें कोशिश ये करते हैं कि उसको इतना साफ कर दें कि उसका जो सेल्फ प्यूरिफिकेशन है, नदी के अंदर जो अपनी खुद की सहन करने की क्षमता है उसको एक्सीड ना करें। वो करने का एक साइंटिफिक तरीका होता है बच्चों, और जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे वो तरीका आप उस वक्त सीख पाओगे। तो वो तरीके से हम पता लगाते हैं कि हम कितने तक हम पोल्यूशन छोड़ सकते हैं और उस तक पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर की टेक्नोलॉजीज है। Okay, sir, actually, there's one last question as well. Why can't we melt ice caps and glaciers and use it? बच्चे आपका क्वेश्चन ना एक बार ना एक अरब कंट्रीज जो होती है ना, आपको पता है, एंड आई होप दिस इज इन ए जोकिंग मैनर इन ए क्लोज ग्रुप, जो अरब कंट्री का ना एक शेख था, वहां पे तो अरब कंट्रीज में बहुत ऑयल होता है, लेकिन वहां पे पानी की बहुत कमी है, क्योंकि वहां पे पानी रेगिस्तान है अदरवाइज, तो पानी वहां पे कम है, लेकिन उनके पास ऑयल बहुत ज्यादा है। तो उनको ये लगता है कि हमारे पास ऑयल इतना ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा, एक शेख ने कहा मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत ऑयल है, लेकिन मेरे पास पानी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बड़ा सा जहाज बनाऊंगा, उसको मैं अंटार्कटिका भेजूंगा और अंटार्कटिका में वो बर्फ भर के लाएगा और यहाँ पे मैं उसको मेल्ट करके पानी बना लूंगा। तो बच्चों
आइस को मेल्ट तो कर सकते हो और इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सेक की तरह अमीर होना पड़ेगा, ठीक है? तो हमारी जनसंख्या, हमारे इंडिया में इतनी अमीरी नहीं है, हमारी 90% पॉपुलेशन बहुत गरीब है और सबके लिए पानी हम आइस को मेल्ट कर करके नहीं बना सकते। दूसरी बात, जो ग्लेशियर्स होते हैं बच्चे, वो हमारे लिए बहुत बहुत उपयोगी है। गंगा नदी साल भर क्यों बहती है? साल भर हमारे यहाँ बारिश तो नहीं होती है। क्यों गंगा नदी में साल भर पानी रहता है? वो इस वजह से रहता है क्योंकि ग्लेशियर्स धीरे धीरे मेल्ट होते हैं। अब जब ग्लेशियर्स धीरे धीरे मेल्ट होते हैं तो हमारी नदियों को वो साल भर पानी देते रहते हैं। अगर हम एक साथ ही सारा आइस को मेल्ट कर देंगे तो हम बाकी के महीनों में जब बारिश नहीं होगी तो हम कहाँ से पानी लाएंगे? वो एक किस्म से बच्चों को कहानी पड़ी होगी ना, एक सोने देने वाली सोने के अंडा देने वाली मुर्गी, तो हम उस मुर्गी को मार नहीं सकते, ग्लेशियर्स को खत्म नहीं कर सकते। Thank you, sir. I think अपने students also do not have any queries as of now, but students जैसे कि आप लोग को बोला है, हम लोग का और sessions होंगे सर के साथ ही है. So tomorrow maybe sir we can start with questions जो उनके आज के queries होंगे. बच्चे आप लोग से भी request करते हैं कि आप लोग अपना questions ready रखिएगा कल के लिए before you know we yes sir. बॉनी, मेरा एक क्वेश्चन बच्चों से है, टीचर से है, और मुझे पता है वो सारे म्यूटेड है तो आंसर तो नहीं कर पाएंगे, बट इफ यू कैन गेट द आंसर्स समहाउ। मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है 6ठी से 8वीं क्लास के बच्चों को से इंटरेक्शन करने का इन दैट सेंस एज ए टीचर। तो मुझे नहीं पता कि मैं किस लेवल पे जा रहा हूँ, क्या मैं बहुत बेसिक लेवल पे हूँ या मैं बहुत एडवांस लेवल पे हूँ। तो अगर आप जरा सा बच्चों से बाय चैट या फीडबैक ले लेंगे तो मैं कल से जो अपनी क्लासेस होंगी उस हिसाब से मैं अपनी मॉडरेट कर लूंगा। अगर मेरे को लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा बेसिक लेवल पे जा रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा उसको हायर लेवल पे ले जाऊंगा, और अगर मैं एडवांस में तो मॉडरेट कर लूंगा। तो ये चीज आप जरा बच्चों से और टीचर से पूछ करके मुझे बता देंगे, चाहे बेशक बाद में, क्योंकि अभी तो सारे म्यूटेड ही हैं, तो ये दैट विल हेल्प मी इन माय नेक्स्ट 3 सेशंस। एंड सर एक्चुअली आई थिंक चैट्स में भी किसी ने लिखा है कि बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन है, तो आई थिंक from that we can gather कि हाँ the flow is perfectly fine sir. And अगर teachers if you feel something please you can I mean आप यहाँ भी बोल सकते हैं, आपका mic I mean you have been given rights, आप लोग यहाँ पर भी एक बार कुछ भी अगर query है please sir से भी बात कर सकते हैं, because you know we will have sir for the next 3 sessions. So yes, if anything, but I think as of now sir, I mean from the chat as we can see and from the questions जो बच्चे raise कर रहे हैं, which means they are they are going the flow is perfect sir. Yes, ठीक है, थैंक यू। बट स्टिल इफ देयर इज अ नीड टू चेंज आई कैन एक्सटेम्पोर चेंज, क्योंकि मैं सारे लेक्चर्स मेरे एक्सटेम्पोर ही हैं। जबरदस्ती मैंने पीपीटी बनाने, तो मैं बच्चों को पीपीटी से नहीं पढ़ाता, मैं बोर्ड पे ही पढ़ाता हूँ। तो ठीक है, इट्स गुड। और मेरा बच्चों आपको वादा है कि मैं भी आपको वीडियो दिखाऊंगा, मूवीज दिखाऊंगा 15-15 मिनट की 2, ठीक है? ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। Thank you so much sir, and I'm sure sir, I mean to begin with sir, it was very very informative, and in fact I got to know many things sir being here. Yes sir. So with this I think we come to the I mean I would like to thank you again for taking out your valuable time and being a part of the being a part of the expert session series sir. And we look forward for your another 3 rounds of sessions and very interesting topics. बच्चे बहुत interesting है, आप लोग को share किया है सर का जो topics है, so please आप लोग attend कीजिएगा और भी बच्चे को बुलाइएगा, and even I request teachers also to let everyone come and join. So thank you so much again sir. Thank you very much. Bye bye. Thank you sir. We would now ask everyone to switch on your video for now. But in the meantime, I would ask Ms. Tanvi Sharma, Associate Fellow EEA TEDdy, to give away the way forward, please. Over to you, Tanvi. Yeah. Hi. Am I audible? Yes. Yeah. Okay. Thank you so much, Monmi, and thank you so much, Arun sir. Also, it was indeed, I mean, really a very interesting session. बहुत सारी नई चीजें हमने भी सीखी हैं आज. Thank you so much.
एंड बच्चों वैसे तो आप सबको हमारी तरफ से मैसेजेस आते रहते हैं, जो लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में एडेड हैं। आपको रवि सर, मौनवी मैम, मैं, तन्वी मैम ने, हाँ, सब आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस भेजते रहते हैं एक्टिविटीज़ के रिलेटेड। बट सिर्फ क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, तो मैं आज आपको 4 पॉइंट्स पे 4 चीज़ें बताऊंगी जो हमारी अभी ऑन गोइंग है और वो हमें कंप्लीट करनी है। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज, जो हमारा विंटर स्कूल चैलेंज है उसके लिए आप सबको हमने मैसेजेस भेजे हुए हैं। इसमें आपको, ये एक फॉर्म है, गूगल फॉर्म, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस आपने जैसे फेज़ 4 हमारा 1 साल से अब ऑलमोस्ट चल ही रहा है, उस फेज़ के अंदर आपने कुछ भी ऐसी एक्टिविटी की है जो एनवायरनमेंट बेनिफिट के लिए है, या वेस्ट मैनेजमेंट पे है, या फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी पे है, किसी भी टॉपिक पे आपने कुछ भी ऐसी एक्टिविटी की है दैट सपोर्ट्स अ गुड एनवायरनमेंट, उसके ऊपर आपको अपनी फोटोग्राफ्स डालने हैं। आई मीन वो एक्टिविटी, अगर आपने हर्बल गार्डन बनाया है या कोई भी सैपलिंग ग्रो करा है, तो उसके साथ आपको एक फ़ोटो अपलोड करना है, और उस एक्टिविटी का पर्पस क्या था, क्यों की, क्या सोच के आपने वो एक्टिविटी की। तो वो फॉर्म आप लोगों को भरना है। इट वोंट टेक यू मच टाइम, बस आपको अपना फोटो वगैरह क्लिक करके उस एक्टिविटी के साथ यू हैव टू अपलोड दैट। जो आप एक्टिविटी कर चुके हो, हेलो, या, सो जो आप एक्टिविटी पहले कर चुके हो, वो भी अगर आपके पास उसकी भी कुछ फोटोग्राफ्स हैं तो आप वो भी अपलोड कर सकते हो। फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकेंड थिंग इज, एक और मैसेज आपको हमने पहले किया था जिसमें हमने 4 कॉम्पिटिशन्स लॉन्च किए थे, उसकी एंट्रीज अब तो हमने बंद कर दी हैं, बट एक पोस्टर कंपटीशन था, एक इलस्ट्रेशन था, एक पोएम का था, और एक ऐसे ही एक्ट टूवर्ड्स नेचर करके, वो भी चारों फॉर्म्स थे जिसमें आपने कुछ कुछ एंट्रीज हमको दी भी हैं। मैं आपको बस बताना चाहूँगी कि उसकी अब जजिंग चल रही है, एंड उसकी जो बेस्ट एंट्रीज होंगे उसको हम लोग एक मॉड्यूल में पब्लिश करेंगे, और वो मॉड्यूल मोस्ट प्रोबेबली, जैसे हमारा एक वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट होता है, उसमें उसको हम लॉन्च कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है रीजनल क्विज। आपकी टीचर्स ने, या फिर अगर आप ग्रुप्स में हो तो आपने ग्रुप्स में भी देखा होगा, हम लोगों ने कुछ कुछ मतलब टीचर से वो एंट्री, मतलब बच्चों के नाम मांगे हैं जो कि हमारे साथ रीजनल क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे। अब उसका जो फर्स्ट लेवल होगा दैट विल बी ऑन 12th ऑफ जनवरी, तो उसका भी अभी प्रोसेस चल रहा है। इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप भी अपने अपने टीचर्स को अप्रोच कर सकते हो, अगर आपको वो रीजनल क्विज में पार्टिसिपेट करना है। उसमें एक आपका जैसे जाजपुर है या फिर झरिया है, तो झरिया के सारे स्कूल्स का एक कंपटीशन होगा, देन उसमें से एक विनर आएगा। ऐसे ही हमारे 7 लोकेशंस के 7 राउंड्स होंगे, उसमें से विनर्स हम लोग निकालेंगे, देन उनके साथ हमारा फाइनल राउंड होगा। उसकी डेट आई थिंक इट्स 19 जनवरी, मॉन मी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सो या, सो ओके, थैंक यू। सो या, ये थी हमारी थर्ड चीज़। और एक फोर्थ चीज़ हमारी है, अगर हमारे साथ टीचर्स, जो भी टीचर्स हमारे साथ इस टाइम जुड़े हुए हैं, उनको मैं बताना चाहूँगी, एक केस स्टडी के लिए आप लोगों को हम लोगों ने मैसेज किया था, हम लोगों ने बात की थी आप लोगों से कि आपने भी जैसे अपने स्कूल में या आपकी कम्युनिटी में, आपके घर के आसपास कुछ भी ऐसा आपने इनिशिएटिव लिया है दैट सपोर्ट्स इन्वायरमेंट। अब इस केस में हर रीजन के लिए अलग अलग एक थीम है, जैसे अंगुल के लिए है वेस्ट मैनेजमेंट पे, जाजपुर के लिए है पोस्ट कोविड इनोवेशन पे, तो ऐसे करके एक क्लाइमेट चेंज कर है सुकिंदा के लिए। ऐसे ही हमारे 7 लोकेशंस के लिए 7 थीम्स है, जो ऑब्वियसली अगेन रवि एंड मॉनमी ने भी अपने जोडा नोआमुंडी एंड झरिया वेस्ट बोकारो के टीचर्स को भी बताया होगा। तो आप लोग प्लीज प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है टीचर्स से, प्लीज ये फॉर्म भरिएगा जरूर, बिकॉज इसकी भी जो विनिंग एंट्रीज होंगी ये भी हमारे एक मॉड्यूल में ही पब्लिश की जाएंगी, एंड विद प्रॉपर नेम, जिसकी भी विनिंग केस स्टडी होगी उसके नाम के साथ वो पब्लिश की जाएगी। तो या, ये 4 चीज़ें थी जो मैं आपको मेजरली अभी बताना चाह रही थी। एक और चीज़ है कि हमारे एक्सपर्ट सेशंस हैं, जैसे एक आज हुआ है, ऐसा ही सेशन एक कल है, और ऐसे 2 सेशंस और हमारे नेक्स्ट वीक होंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स और टीचर्स हमारे साथ इस टाइम अवेलेबल हैं, जो भी अटेंड कर रहे हैं ये सेशन, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप तो अटेंड करना ही, और आपके साथ साथ और भी आपके स्टूडेंट्स को या टीचर्स को सर्कुलेट करना, सो दैट वो भी पार्टिसिपेट करें। आप लोगों को पता है ना ये कितने इंटरेस्टिंग सेशंस होते हैं,
आप आज आए हो, आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया सीखा होगा जो आपने पहले नहीं सुना है, क्योंकि ये सब चीजें आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी। ये सब चीजें मिलती हैं, जैसे आज आप अरुण सर के साथ इंटरेक्ट करा है, पहले आपने सुनील सर के साथ जिन्होंने वेस्ट के ऊपर सेशन लिया था उनके साथ इंटरेक्ट किया था। ऐसे ऐसे आप लोग मतलब जैसे नए नए लोगों से इंटरेक्ट करोगे, यू विल गेट टू लर्न न्यू थिंग्स। दैट इज वाई मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग खुद भी आना। जैसे आज हमारे साथ कुछ कुछ टीचर्स के साथ 15-15, 20-20, 30-30 बच्चे भी जुड़े हुए हैं। आप आना, अपने फ्रेंड्स को लेके आना और आपकी टीचर्स को तो फोर्स करना कि वो तो आए ही आए। And I'll request my teachers also ki please get as many students on board as possible, because it is not just for you, it is for others as well. With this, yeah, these are 4 to 5 things that I just wanted to tell you. And with this, I would like to thank Professor Arun Kansal, Dean Academic and Professor Coca-Cola Department of Regional Water Studies, Terry School of Advanced Studies, for taking out time from his busy schedule to apprise all of us about water resources management and why is it important to reduce water pollution. Also, I would like to thank the entire team of Tata Steel Foundation and my colleagues from Terry who have been working and are still working to make this project a grand success. Lastly, thank you to all the students and teachers for joining us today. And we will now see you all tomorrow positively, this time and definitely on Microsoft Teams. Thank you so much, everybody. Thank you, Monmi. Over to you. Thank you. Thank you, Tanvi. Meanwhile, I would request everyone to kindly switch on your video so that हम लोग एक group photo ले ले. And Saina, अगर आपको कुछ query है, you can please post it. आपका video भी on है, mic भी rights दिया गया है. So please, yeah, Sanya. Sena actually. Okay, अगर कुछ अभी के लिए, if you feel that you want to say it tomorrow, then please feel free to do so. And meanwhile, I would request everyone to switch on their videos so that I can take a quick group picture. Saina, I think Monmi, Saina is a little confused. Saina, it is these 7 themes are not for the winter school challenge. विंटर स्कूल चैलेंज में आपको वो अपलोड करना है जो आपने खुद से किया है। जो मैंने आपको थीम्स बताई हैं, ये केस स्टडी के लिए हैं, जो कि टीचर्स के लिए है, नॉट फॉर द स्टूडेंट्स। तो आपने कुछ भी थीम पे कोई भी एक्टिविटी अगर करी है तो आपको वो उस पे अपलोड करनी है एज अ स्टूडेंट। I hope, Saina, your query is addressed. आप कुछ भी हो, you can feel, you can write to us tomorrow also. हम लोग यहाँ हैं already, आपके साथ available है. Okay, so everyone, quickly एक video, बस group photograph लेना है. So everyone, if you can switch on your video. I hope सबने video on करके रखा है. Okay, thank you so much everyone, and tomorrow हम लोग वही इसी enthusiastic participation के साथ हम लोग फिर से join करेंगे, and 2:30 around आप लोग आ जाइएगा, so that आपका कुछ भी queries होगा, we can address it in the beginning and then we can take the sessions. Very good to see RBC boys, Sukinda, आप लोग का पूरा group picture आ रहा है, so very good to see you all. Thank you. And even Sasmita ma'am, RBC Girls Joda also, we can see everyone in the group. So thank you so much everyone for joining. Thank you. Bye-bye. And be safe everyone. Cases बहुत sorry? Okay, so everyone, आप लोग please safe रहिएगा, अपने घर में रहिएगा, मास्क पहनिएगा. So cases बहुत अभी rise हुए हैं. So everyone, please be safe and we will see you tomorrow. Thank you. Bye bye.